آج زینب بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کے بیٹے نوید کی شادی طے ہو گئی تھی۔ ادھر اس کی بیٹی پری بھی خوشی سے پھول نہ سمائی۔ اب گھر میں بھابھی آ جائے گی جو اس کی پکی سہیلی بن جائے گی۔ بہت پیار سے رہیں گی دونوں نند بھابھی۔ یہی سوچ کر پری نے نہ جانے کتنے خواب بن ڈالے۔ آہستہ آہستہ شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ زینب نے اپنی ہونے والی بہو رخسانہ کی ماں کے پاس فون کیا اور کہا، بہن جی، لہنگا تو ہماری طرف سے دیا جائے گا، اس لیے آپ رخسانہ کو بھیج دیجیے گا، میں ادھر سے اس کی نند پری کو بھیج دوں گی، دونوں نند بھابھی جو پسند آئے گا وہ لے آئیں گی۔ زینب کی اتنے کہتے ہی ان کے ہونے والی بہو رخسانہ نے اپنی ماں کے پاس سے فون لیا اور زینب سے کہا، نہیں امی جان، لہنگا تو میں ڈیزائن والا لوں گی جس کے لیے مجھے لاہور جانا پڑے گا، اور پھر پری وہاں جا کر کیا کرے گی، اس وقت ضائع ہوگا۔ ایک کام کرتے ہیں، میں اپنی سہیلی کو لے جاؤں گی جو لاہور میں ہی رہتی ہے، اور ویسے بھی آپ لوگ یہاں 2-3 ہزار کا لہنگا دلواؤ گے، میرا لہنگا تو پورا 1 لاکھ سے نیچے کا نہیں ہونے والا، اس لیے آپ لوگ میری شاپنگ کی ٹینشن نہ لیں تو ہی ٹھیک رہے گا۔ اپنی ہونے والی بہو کے منہ سے ایسی باتیں سن کر زینب کو اچھا تو نہیں لگا، لیکن پھر بھی نیا رشتہ تھا اس لیے چپ رہ گئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیرے سے کہہ کر زینب نے فون رکھ دیا۔ 2-4 دن بعد زینب نے اپنی بیٹی پری سے کہا، بیٹی، زیادہ تر سامان تو تمہاری بھابھی ہی خرید رہی ہے، مگر ہمیں سہاگ چوڑا تو خریدنا ہی ہوگا، اور ہمیں اس کی کلائی کا ناپ بھی نہیں پتا۔ ہم ایک کام کرو، آج شام کو کالج سے سیدھا اس کے گھر چلی جانا اور وہاں سے ایک چوڑی ناپ کے لیے لے کر آنا۔ پری نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں کالج سے آتے وقت بھابھی جان کے گھر پر چلی جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر پری کالج کے لیے نکل گئی اور شام کو چھٹی ہونے کے بعد وہ اپنی ہونے والی بھابھی رخسانہ کے گھر چلی گئی، جہاں اس کی اچھی خاطر تواضع ہوئی۔ اس نے رخسانہ کی ماں سے کہا، آنٹی جی، بھابھی کے ناپ کی چوڑی چاہیے تھی، آج مل جاتی تو ہمیں خریداری میں آسانی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا، ہاں بالکل بیٹا، جاؤ اس کمرے میں چلی جاؤ، اور رخسانہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہے۔ پری اٹھ کر رخسانہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو کمرہ قیمتی اشیاء سے آراستہ تھا۔ رخسانہ نے کہا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا تم نے اتنا عالیشان کمرہ، شاید اسی لیے حیرانی سے دیکھ رہی ہو۔ پری بولی، جی بھابھی، وہ آپ کی گھڑی بھی بہت خوبصورت ہے، بالکل ایسی ہی گھڑی میں نے بھی لینے کی سوچی ہے۔ وہ آگے کچھ بولتی اس لیے ہی پہلے رخسانہ بول پڑی، اچھا یہ بتاؤ تم کسی کام سے آئی تھی کیا؟ پری بولی، ارے ہاں بھابھی، میں تو بھول ہی گئی، وہ آپ کی چوڑی کا ناپ چاہیے تھا۔ تب رخسانہ نے ایک سونے کا کڑا نکال کر پری کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پری نے کہا، نہیں بھابھی، سونے کا نہیں، شیشے کی چوڑی چاہیے۔ رخسانہ بولی، شیشے کی چوڑی؟ وہ تو ملنا بڑی مشکل ہے، اسے ہی لے جاؤ، چاہے تو تم اسے اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ پری نے کہا، نہیں نہیں بھابھی، میں اسے اپنے پاس کیوں رکھوں گی، براہ کرم آپ مجھے شیشے کی یا آرٹیفیشل چوڑی دے دیجیے۔ رخسانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے میرے پاس آرٹیفیشل جیولری نہیں ملتی، میں ڈائمنڈ پلاٹینیم سونا ہی لیتی ہوں۔ پری بولی، تو لیجیے آپ کے کڑے کا میں ڈرائنگ بنا لیتی ہوں تاکہ ہمیں لاکھ کا چوڑا خریدنے میں آسانی ہو۔ رخسانہ حیرت سے بولی، لاکھ کا چوڑا، وہ کیا ہوتا ہے؟ پری نے کہا، بھابھی، وہ شادی میں ہماری طرف سے سہاگ کا چوڑا چڑھے گا۔ رخسانہ بولی، مطلب تم لوگ مجھے گولڈ ڈائمنڈ نہیں دینے والے، نکلی پہناؤ گے؟ پری نے کہا، وہ سب مجھے نہیں پتا بھابھی، میں تو امی کے کہنے پر یہاں آئی تھی، میں نے یہ ڈرائنگ بنا لی ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ باہر جانے لگی تو رخسانہ بولی، ارے رکو، تمہیں میری گھڑی بہت پسند آئی تھی نا؟ پری بولی، جی بھابھی، بہت اچھی لگی، میں نے آن لائن دیکھی تھی مگر بجٹ سے باہر تھی اس لیے نہیں خریدی۔ رخسانہ بولی، تو تم رکھو اسے، پہلی بار مجھ سے ملنے آئی ہو، لو میری طرف سے اسے تحفہ سمجھو۔ پری نے کہا، مگر بھابھی، اتنی مہنگی گھڑی۔ رخسانہ نے کہا، مگر مت کرو، میں نے دے دیا تو دے دیا، دینے کے بعد تو میں اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پری گھڑی لے کر چپ چاپ اپنے گھر آ گئی اور لا کر گھڑی کو ایک طرف الماری میں رکھ دیا۔
क्योंकि जिस तरीके से रुखसाना ने वो घड़ी दी थी उसमें कहीं से भी इज्जत और एहतराम नहीं झलक रहा था, बल्कि दिखाई दे रहा था सिर्फ उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। चुनाचे कुछ ही दिनों में परी के भाई नवीद की शादी हो गई और रुखसाना ज़ैनब के घर बहू बनकर आ गई। अगले दिन बहू की पहली रस्मी रोटी खाने के लिए ज़ैनब ने कुछ लोगों को बुलाया था। उन्होंने अपनी बेटी परी से कहा, परी बेटा जाकर अपनी भाभी को बुला ले। परी रुखसाना के कमरे में पहुंची, दरवाजा खुला था तो वो सीधा अंदर आ गई। तब पीछे से रुखसाना चिल्लाते हुए बोल पड़ी, परी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर पूछे मेरे कमरे में आने की। परी बोली, भाभी अम्मी ने आपको नीचे बुलाया है, बस वही कहने आई थी। रुखसाना बोली, अच्छा तो तुम्हारे हाथ में मेरा ये ब्रेसलेट क्या कर रहा है। परी बोली, वो भाभी जमीन पर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दूंगी। रुखसाना बोली, रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे बहाने। अगर मुझे वॉशरूम से निकलने में 2 मिनट और लग जाते तो तुम मेरा कीमती डायमंड का ब्रेसलेट लेकर समेत हो जाती। परी बोली, नहीं भाभी आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस। रुखसाना बोली, बस बस, खूब जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को जो मौका मिलते ही कीमती चीजें हड़प कर लेते हैं। एक बार तुम्हें अपनी घड़ी क्या दी, तुम तो अपना ही समझ बैठी। ध्यान से सुनो, वो घड़ी मेरे लिए पुरानी हो चुकी थी, वैसे भी मैं उसे अपने काम वाली बाई को ही देने वाली थी कि तुम आ गई। सोचा उसे तो कीमती सामान देती ही रहती हूँ, क्यों ना तुम्हें दे दूं। आखिर तुम मेरी नंद हो ठहरी, मगर तुम कभी ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मुझ पर हक जमा लोगी। ये कमरा यहाँ रखा हर सामान मेरा है, इसलिए कभी अपना समझने की गलती ना करना। रुखसाना ने गुस्से से कहा तो बेचारी परी अपना सामना लेकर वापस बावर्ची खाने में आ गई। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर ज़ैनब ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तेरी भाभी तैयार हुई या नहीं। तो उसने सारी बात छुपाते हुए अम्मी से कहा, हाँ अम्मी तैयार होकर बस आ रही है। इतने में पीछे से रुखसाना भी आ गई। ज़ैनब बोली, आओ बहू देखो सारा खाना बन चुका है, बस तुम हलवे में थोड़ी सी चीनी डाल दो और थोड़ा सा सलाद काट दो, तब तक परी का खाना टेबल पर लगा देगी। तुम बस अपने हाथों से खाना परोस देना, तुम्हारे चचा और चची आए हुए हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अपनी सास की बात सुनकर रुखसाना चिल्लाते हुए बोली, अम्मी जान मुझे तो समझ नहीं आता, आप लोग इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। आप मुझे साफ साफ कह देती कि मैं पूरा खाना बना लेती। ये हलवे में चीनी डाल दे, सलाद काट दे, मैंने कुकिंग क्लासेस कर रखी है। आप कहती तो मैं सब कुछ बना देती, पर नहीं, आपको तो सारा क्रेडिट खुद लेना है। इसका कहना इतना जोर से था कि बाहर बैठे सब लोगों ने सुन लिया। ज़ैनब बहू की ऐसी बातें सुनकर सुन हो गई। उन्हें बहू से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो सबके सामने उनकी ऐसे बेइज्जती करेगी, मगर वो बेटे की खातिर मजबूर थी, इसलिए चुप रह गईं और बाहर आकर सफाई देते हुए बोली, अरे अभी शादी में थोड़ी थकी हुई थी ना, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बात को संभालते हुए ज़ैनब ने कहा तो बस सब लोग खाना खाने बैठ गए। ज़ैनब का बेटा नवीद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक कमेटी में नौकरी कर रहा था। उस कंपनी के मैनेजर को अपनी बेटी रुखसाना के लिए नवीद पसंद आ गया। चंद मुलाकातों और बातों में दोनों का तारुफ हुआ। रुखसाना को भी नवीद अच्छा लगा और दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। ज़ैनब का ताल्लुक मुतवस्सित तबके के खानदान से था। शौहर के जाने के बाद बड़ी मुश्किलात से दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटी बेटी परी मुकाबले की तैयारी कर रही थी। पहले नवीद की नौकरी, फिर शादी। ज़ैनब के लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की का वालिद बहुत पैसे वाला है तो उन्होंने नवीद से कहा, बेटा अच्छे से सोच विचार के शादी का फैसला करना है, क्योंकि रुखसाना एक अमीर खानदान की लड़की है। क्या वो हमारे साथ मुतवस्सित जिंदगी गुजार सकेगी? क्या तुम इसकी ख्वाहिशात पूरी कर पाओगे? क्या वो हमारे खानदान के साथ मिलजुल कर रह पाएगी? नवीद ने कहा, बिल्कुल अम्मी, रुखसाना अमीर घराने से जरूर है, मगर उसकी सोच बहुत अच्छी है। जब मैंने उससे ये कहा तो वो बोली, ख्वाहिशात तो मेरे वालिद ने
सब पूरी कर ही दी हैं, मुझे तो तुम्हारे जैसा शोहर और ख़ानदान मिलेगा तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर ज़ैनब भी खुश हो गईं। सोचा लड़की के ख्यालात अच्छे हैं तो हमारे घर में भी अच्छी तरह से रहेगी। खुद भी एक दो बार मिली तो लड़की उन्हें अमली तौर पर ठीक ही लगी, मगर अब 2 ही दिन में रुखसाना के रंग बदले बदले नजर आने लगे। हर बात पर वो ज़ैनब को जवाब देने लगी, किसी का लिहाज नहीं करती, जो मुंह में आता वो बोल देती। ज़ैनब सोच रही थी कि अमीर खानदान की लड़की है, खानदान में ढलने के लिए वक्त लगेगा, बस यही सोचकर वो चुप रह जाती। मगर रुखसाना की मनमानियां बढ़ती जा रही थीं। ज़ैनब और उनकी बेटी परी दोनों माँ बेटी रुखसाना की हरकत से परेशान हो गईं, मगर जाएं तो जाएं कहाँ, इसलिए चुपचाप जो हो रहा था सहने लगीं। एक दिन ज़ैनब को पड़ोस में कुरान खानी में जाना था। उन्होंने परी को बताया और चुपचाप निकल गईं। कुछ देर बाद परी की सहेली ने परी को अपने पास पढ़ने के लिए बुलाया तो परी ने रुखसाना के कमरे में जाकर दरवाजा बजाना ठीक नहीं समझा। पता नहीं किस बात पर भाभी भड़क जाए, ये सोचकर वो चुपचाप बाहर से ताला लगाकर चली गई। क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला जा सकता था, इसलिए फिक्र भी नहीं थी। कुछ देर बाद रुखसाना ने परी को चाय बनाने के लिए आवाज लगाई, मगर जवाब ना आने पर उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था। गुस्से से तलमलाकर उसने अपने शौहर नवीद को फोन लगा दिया। तुम्हारी माँ और बहन एक नंबर की बदतमीज हैं, घर में बहू को बंद करके घूमने निकल गई हैं। तुम इसे खानदान कहते हो, वैसे तो बढ़िया कहती फिरती हैं तुम्हारी माँ के तुम हमारी बेटी हो। अब किसी ने मुझे बताना ठीक नहीं समझा, या फिर उन्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि कहीं भी जाए तो बता कर जाए। रुखसाना का गुस्सा देखकर नवीद उसे मनाते हुए बोला, अरे रुखसाना, हम सब के पास चाबी रहती है, तुम्हारे आने से पहले हम कहीं भी जाते थे तो चाबी लगाकर चले जाते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होंगी। रुखसाना बोली, अच्छा इतनी बड़ी बात है और तुम उन दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हो, मुझे तुम से उम्मीद ये नहीं थी। गुस्से में तलमलाकर उसने फोन काट दिया। नवीद को तो पता ही नहीं था कि रुखसाना को बात का बतंगड़ बनाने की इतनी आदत है। वो सोचने लगा कि घर पहुंचकर अब पता नहीं कौन सी क़यामत टूटेगी, लेकिन वो घर पहुंचा इसलिए उससे पहले ही ज़ैनब घर पहुंच चुकी थी और बहू की सारी शिकायतें भी सुन चुकी थी। मगर जैसे ही रुखसाना ने खावंद को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपकी माँ को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, कहती है इनका कायदा है कुरान खानी में जाने और मैं कमरे में थी इसलिए मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और तुम्हारी बहन तो आवारा गर्द करती है फिरती है, जब मुंह किया अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई का बहाना बनाकर मटर गश्ती करने निकल जाती है। तभी परी घर में दाखिल हुई, भाभी क्या बकवास कर रही हो, मैं मटर गश्ती करने नहीं अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई करने गई थी। रुखसाना बोली, हाँ खूब जानती हूँ, ये पढ़ाई के बहाने घूमना फिरना, चाट पकोड़े खाना और अमीर लड़कों के साथ बाइक पर बैठकर वो आगे पीछे बोलती। इससे पहले ही परी चिल्लाते हुए बोली, बस करो भाभी, आगे एक लफ्ज और नहीं, आप मुझे जानती कितना है जो मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। आज परी चुप ना रह सकी। रुखसाना बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जबान खोलने की, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। गरीब घर की लड़कियों को इतना मुंह नहीं खोलना चाहिए, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, इसलिए मुझसे ऐसी बदतमीजी दोबारा मत करना। ये सुनकर नवीद एकदम से रुखसाना पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुखसाना मेरी बहन से ऐसे बात करने की। रुखसाना बोली, अच्छा इतना बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी बहन के साथ बैठकर रोना शुरू करो, क्योंकि मैं अब्बा से कहकर तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा दूंगी। फिर बैठकर दोनों भाई बहन कटोरा लेकर मस्जिद के बाहर भीख मांगना। और हाँ, अब मुझे तुम्हारी ये माँ और बहन घर में बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें बरसाने वाले कमरे में शिफ्ट कर दो, वरना मैं मैके चली जाऊंगी और लौट कर नहीं आऊंगी। ये दिन रात की कट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसलिए जल्दी से आप दोनों माँ बेटी अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लीजिए। रुखसाना की ऐसी बात सुनकर नवीद घबरा गया और बगैर कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर चला गया। उधर बहू की बात सुनकर ज़ैनब हैरान रह गई, मगर अब करती भी क्या। एक माँ बेटे के कैरियर की खातिर चुपचाप रह गई और बरसाने वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। अब तो आए दिन रुखसाना दोनों माँ बेटी पर तनकसी रहती, घर का कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे बस हुक्म चलाती। परी कोई बुरा तो बहुत लगता, मगर वो अपनी माँ और भाभी की वजह से चुप रह जाती। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन रुखसाना ने सबसे कहा कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, इसलिए मैं मैके जा रही हूँ। ज़ैनब ने कहा, बहू शादी को तो अभी 2 महीने हैं और तुम अभी से मैके जाओगी? रुखसाना तब बोली। रुखसाना ने उनकी बात काटते हुए कहा, कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे यहाँ लोकल शॉपिंग नहीं की जाती, कराची लाहौर पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। अब ये सब एक दिन में तो नहीं होगा। हाँ, आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो गलियों से शॉपिंग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 2 महीने के लिए जाकर बैठने वाली हूँ। बीच बीच में आती रहूंगी, लेकिन हाँ, मुझे फोन करके टांग मत उड़ाना। बोलकर रुखसाना अपना बैग उठाकर घर से चली गई। कुछ दिन बाद ज़ैनब की बहन और बहनोई आने वाले थे। ये सोचकर ज़ैनब ने अपनी बहू को फोन किया और कहा, बहू घर आ जाओ, मेरी बहन और बहनोई तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, सो अब मिलने आएंगे। तुम घर आ जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ज़ैनब ने बड़े प्यार से कहा था, लेकिन रुखसाना चिल्लाते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने कहा था ना कि फोन करके बीच में टांग मत उड़ाना। आप उनसे कह दीजिएगा कि उसकी बहन की शादी है और वो नहीं आएगी। ज़ैनब बोली, पर बेटा तुम्हें गए 20 दिन हो गए हैं, एक चक्कर लगा लो घर का, कुछ ना कुछ तो इस बहाने आ जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। ज़ैनब ने धीरे से कहा तो रुखसाना बोली, ओहो, शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मैके के फर्ज भूल जाऊं। और दूसरी बात, अगर आपको मिठाई वगैरह चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी, मगर मुझसे आने की उम्मीद मत रखना। वैसे भी ससुराल वालों को यही सब चाहिए होता है, आप उन्हें मैं खुश हो जाते हो। बोलकर रुखसाना ने फोन रख दिया। ज़ैनब को वैसे भी रुखसाना के रंग ढंग पसंद नहीं थे, ऊपर से आज घराना से मना करने पर वो और गुस्से में लाल हो गई और अपने बेटे नवीद से बोली, नवीद, तू अपनी बीवी से कुछ कहता क्यों नहीं? हम गरीब हैं पर इज्जत की रोटी खाते हैं। ये अपने पैसों का धोस बात बात पर दिखाना अच्छी बात नहीं है। और तो भी एक नंबर का झूठा निकला। तूने शादी सिर्फ बड़ी पोस्ट पाने के लिए की, पर हमें बताया भी नहीं। आज इसका हर जाना हमें अपनी इज्जत गिनवा कर देना पड़ रहा है। नवीद बोला, क्या अम्मी अब बस भी करो, तुम सारी जिंदगी कपड़े सीते सीते क्या पा गई हो? याद है 2 वक्त की रोटी भी हमें सब्जी के साथ नसीब नहीं होती थी। आज मैंने घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ कमा लिया है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? और फिर रुखसाना ने गलत भी कहा क्या है, हम गरीब तो थे और अब रुखसाना की वजह से हमारा स्टेटस बना है, तो फिर तुम इसके मजे लो। क्यों फजूल में एक बात कहती हो और 2 बातें सुनती हो? मामू और मामानी आ रहे हैं तो उनकी खातिर तवाज़ो करो, पहले भी तो वो तुमसे मिलने ही आते थे। दूसरी बात, जब हम गरीब थे तो कौन से मामू मामानी ने हमारी मदद की थी कि हम उन लोगों के बारे में इतना सोचें? अरे जैसे पहले आते थे वैसे ही चाहे नाश्ते से ज्यादा खातिर तवाज़ो करने की कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर नवीद भी दफ्तर के लिए बिल्कुल बाहर निकल गया। तभी उनकी बेटी परी बोली, अम्मी, हमने कौन से पाप किए हैं कि हमें दिन रात गरीब होने का ताना दिया जाता है? ज़ैनब ने कहा, जाने दे बेटी, तेरी भाभी होगी अपने घर में अमीर, आखिर वो भी तो मैके में अपनी इज्जत गिनवा रही है। मगर ये बात उन्हें कहाँ समझ आई है, पैसों का घमंड जो चढ़ा हुआ है सर पर। खैर धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ गया। शादी वाले दिन नवीद ने अपनी माँ ज़ैनब से कहा, अम्मी, आप लोगों को ले जाने के लिए ड्राइवर पहुंच जाएगा, आप वक्त पर आ जाना। बोलकर वो अपने ससुराल के लिए निकल गया। शाम को 8 बज गए थे, ना गाड़ी थी ना ड्राइवर। तो हार कर अपने भाई को फोन लगाया
लेकिन नवीद का फोन नहीं मिला। तो उसने अपनी भाभी रुखसाना को फोन लगाया और बोली, भाभी भैया ने कहा था का गाड़ी भेज रहे हैं, कितना वक्त और लगेगा, जरा पता करके बता दीजिए। ये सुनकर रुखसाना गुस्से से बोली, गाड़ी भेज रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जैसे भकमंगों के लिए मैं ये सहूलत भी दूंगी? चुपचाप ऑटो करके आ जाओ। अगर उसके पैसे ना हो तो ऑटो वाले से कहना कि दरवाजे पर खड़े गार्ड से पैसे ले लेगा। मेरा नाम लोगे तो ऑटो वाले का किराया वो भी दे देगा। फोन स्पीकर पर था, इसलिए जरा ने सारी बातें सुन ली और सोचने लगी कि अगर अभी नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएंगी। ये सोचकर उन्होंने परी के हाथ से फोन लिया और गुस्से से बोली, बहू अब बस भी हुआ, तुम अपनी अमीरी अपने पास रखो। जब तुमने और तुम्हारे अब्बा ने रिश्ता तय किया था तब ये नहीं देखा था कि हम जैसे गरीब भिख मंगे के घर अपनी राजकुमारी की शादी कर रहे हैं। तब तो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने यही कहा था कि हमें आप जैसा सीधा सच्चा खानदान चाहिए ताकि हमारी बेटी सदा खुश रह सके। मगर तुम्हारे अब्बा ये भूल गए हैं कि उनकी बेटी को प्यार, खुशियां या आशीर्वाद नहीं, सिर्फ रुपए पैसों से प्यार है और उन्हें पैसों के ठसक में वो अपनों से बड़ों की बेइज्जती करने लगती हैं। जरा सी भी देर नहीं करती। मगर रुखसाना बहू, एक बात याद रखना, ये पैसा तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, तुम्हारे वालिद साहब का है। तुम कितना भी इससे पैसे पर उतरा लो मगर कायदे से इस पर तो तुम्हारा कोई हक नहीं है। और ध्यान रखना बहू, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज तुम्हारा वक्त है तो कभी हमारा वक्त भी आएगा। और हाँ, तुम्हारी घर की शादी तुम्हें मुबारक हो, हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे। कहकर जनाब ने फोन रख दिया। रुखसाना तो बेहया औरत थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी सास ने उसे क्या कहा है और क्या नहीं। वो तो खूब मजे से अपनी छोटी बहन की शादी में एंजॉय करने लगी। बहस हो जाने के बाद ज़ैनब बेचैन हुआ उठी और सोचने लगी कि आखिर कौन से जन्म के पाप मिल रहे हैं कि एक बेटा और बहू मिली, वो भी ऐसी जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बेटे ने भी माँ की परेशानी नहीं समझी, जाकर पैसों के लालच में जॉय का गुलाम हो गया। बहू को इतना प्यार और इज्जत दी, लेकिन वो भी अपने से पीछे नहीं हटती, जबकि उसे कोई रोक टोक नहीं, जैसा चाहे अपनी जिंदगी जिए, कभी हमने दखल अंदाजी नहीं की। बिलकोनी की कुर्सी पर बैठी हुई ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से परी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अम्मी चुप हो जाओ। ज़ैनब बोली, बेटा मुझे बहू से इस तरीके से बात करनी चाहिए थी। परी बोली, ठीक कहती हो अम्मी, ऐसा करने का सारा हक तो सिर्फ आपकी बहू का ही है। वो जैसे चाहें हम दोनों से बात कर सकती हैं, हमसे आईना नहीं दिखा सकते। ज़ैनब बोली, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज बहू को कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बुरे के साथ अगर हम बुरे बन जाएंगे तो हमारा और उनका दर्जा एक ही हो जाएगा। हमें अपनी भलाई और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। परी बोली, हाँ अम्मी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। दोनों माँ बेटी गहरी सोच में बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद ज़ैनब बोली, बेटी 6 महीने होने को आए हैं, यहाँ तो मैं कभी ख़त्म नहीं होती, तो एक काम कर, अपनी आने वाली इम्तहानात पर ध्यान दे। बेटा तेरी सहेली रुबीना है ना, तो उसके साथ होटल के रह कर तैयारी कर ले। परी बोली, लेकिन अम्मी घर पास में होते हुए अगर मैं हॉस्टल में रहूंगी तो क्या अच्छा लगेगा, और फिर आप भी यहाँ अकेली रह जाओगी। ज़ैनब बोली, मेरी फिक्र मत कर बेटी, कभी कभी मजबूरी में आकर इंसान को मुश्किल फैसले भी उठाने पड़ते हैं। यहाँ बहू रोजाना ही हंगामा मचाती है, मैं यहाँ रहकर सब संभाल लूंगी, बस तू अपनी पढ़ाई और इम्तिहान पर ध्यान दे। बस मेरी लाज रख ले बेटी, तू कुछ बन जाएगी तो मुझे भी इस जहन्नम से बाहर ले चलना। अब मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। अपनी माँ के चेहरे पर आई बेबसी देखकर कसमसा गई और अपनी माँ की बात को अपने जहन में बिठा लिया और अगले ही दिन चल पड़ी अपना मुस्तकबिल बनाने। वो हॉस्टल में रहकर दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। कुछ दिन बाद रुखसाना नवीद शादी से फारिग होकर घर लौटे तो रुखसाना ने पूछा, अम्मी जान नंद रानी कहाँ हैं?
दिखाई नहीं दे रही। जैनब ने बस इतना कहा, बहू वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही है। इतना सुनना था कि रुखसाना चिल्लाते हुए बोली, अरे ये क्या बात हुई, घर पास में होते हुए भी आपने लड़की को हॉस्टल में भेज दिया। देख लिया नवीद, तुम्हारी बहन को यहाँ मेरी टोक टोक की वजह से गुलछरे नहीं कर पा रही थी, इसलिए अकेले जाकर रहने लगी। तो नवीद बोला, अम्मी ये क्या बात हुई, आपने लड़की को हॉस्टल भेज दिया, लोग क्या कहेंगे, एक ही शहर में रहते हुए लड़की अनजान जगह पर रह रही है, साथ में आपको पता है कितना खर्चा होता है, वो पैसा कौन देगा। आप एक काम करो, परी को घर वापस बुला लो। जैनब बोली, नहीं बेटा, अब परी को वापस तो नहीं बुला सकती, और दूसरी बात, पैसे की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सिलाई करके जब मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ, तो वही काम करके मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाऊंगी कि कल को उसकी हालत मेरे जैसी ना हो। तुम्हारे वालिद के जाने के बाद मैंने खुद इन्हिसार की अहमियत जान ली थी। आज मैं अपनी बेटी को भी खुद इन्हिसार बनाना चाहती हूँ, ताकि कोई उसे अपने रुपए पैसों की धूनस ना दिखा सके, फिर चाहे वो इसका शोहर हो या ससुराल वाले या कोई और। इनका इशारा रुखसाना की बहू की तरफ था। रुखसाना बोली, अम्मी जान, हम तो आपके भले के लिए ही कह रहे थे, कुंवारी लड़की को इस तरह आज़ाद देकर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होता। हाँ, आपको ज़्यादा खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी पड़ी है तो करती रहो, बुढ़ापे में उल्टे सीधे काम लेना, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। बोलकर रुखसाना और नवीद दोनों अपने कमरे में चले गए। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। रुखसाना और नवीद अपनी दिखाड़े की जिंदगी में मसरूफ रहे। कमाना और उड़ाना बस दो ही काम रह गए थे उनके पास। जैनब ने कई बार कहा भी कि रुपए पैसों की कदर करो, जितना खर्च करते हो इतनी बहस भी किया करो। तो बहू चटा से बोली, ये सब फजूल काम तुम जैसे गरीब लोगों पर शोभे ही देते हैं, हम जैसे अमीर लोगों को तो जितना कमाते हैं उतना भी उड़ाते दे हैं, यही हमारी लाइफ स्टाइल है, तभी तो हम चार लोगों में अपनी हैसियत का दिखावा कर पाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि एक जोड़ी कपड़े में 10 जगह घुमाई। रुखसाना का घमंड दिन रात बढ़ता ही जा रहा था। अब जब ख्वाहिशें इतनी बड़ी बढ़ गई थी तो उन्हें पूरा करने के पैसों की जरूरत भी नहीं होती। अब दिन ब दिन रुखसाना अपने मैके में अपने वालिद पर दबाव डालने लगी। आए दिन महंगे महंगे कपड़े खरीदती, लेकिन शॉपिंग का बिल अपने वालिद के खाते में डाल देती। अपने ससुराल में ना रहकर ज्यादातर मैके में पड़ी रहती। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तुझे अपने ससुराल पर भी ध्यान देना चाहिए, अगर हमेशा यूं ही मैके में रहोगी तो जैनब क्या सोचेगी। इस पर रुखसाना बोली, अम्मी पहले तो आपने मुझे इन भूखे नंगे लोगों के घर में मेरी शादी कर दी, वहाँ पर मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई सुख सहूलत नहीं है, और वैसे अम्मी मेरी छोटी बहन भाभी तो आती जाती रहती हैं, आप उसे तो कुछ नहीं कहती। रुखसाना ने गुस्से से कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा तू पूजा की बराबरी मत कर, वो तो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह गई है, और ना ही छोटे दामाजी कभी हमसे कोई मदद मांगते हैं, और यहाँ नवीद दफ्तर में कुछ काम करते नहीं हैं, ऊपर से तनख्वाह के साथ गैर ज़रूरी अखराजात भी जोड़कर दिखाता है। अपने घर जाने के बजाय हमारे घर पर ही पड़ा रहता है। वो तो दामाद से इसलिए हम कुछ नहीं कहते, वरना तेरे अब्बा ये सब बर्दाश्त करते करते थक गए हैं, इसलिए कहती हूँ तुम दोनों सुधर जाओ, वरना हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर रुखसाना गुस्से से तलमलाते हुए बोली, अम्मी अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची तो मैं आप पर केस कर दूंगी, और अपने हक में ज़मीन जायदाद और दफ्तर अपना हिस्सा सब कुछ ले लूँगी, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझे इल्म देने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है। बोलकर रुखसाना अपने कमरे में चली गई। रुखसाना और नवीद के करतूतों से ज़ैनब ही नहीं बल्कि उसके खुद के वालिदैन भी परेशान हो चुके थे, मगर क्या करते, बेटी को खुद इतना सर पर चढ़ाया था, अब कर ही क्या सकते थे, इसलिए कसमसाते रह जाते। एक दिन रुखसाना की छोटी बहन पूजा घर पर आई। रुखसाना ने पूछा, अरे वाह, इतनी सारी शॉपिंग कहाँ जा रही हो,
बोली जाबू दीदी और मैं और रहमान कराची जा रहे थे। अब्बा ने हमारी टिकट की है, इसलिए थोड़ी शॉपिंग करके लाई हूँ। अब्बा ने कहा था कि टिकट घर पर रखी है, पास ही ना आई तो सोचा अभी ले लेती हूँ। सुनकर रुखसाना हैरत से बोली, क्या अम्मी अबू तुझे कराची भेज रहे हैं और मुझे कहीं भी नहीं भेजा? अपनी ही दोनों बेटियों में तफरीक करते हैं। रुखसाना बोली ही रही थी कि इतने में उसके वालिद रशीद साहब वहां आ गए और बोले, मैंने कोई तफरीक नहीं की। हाँ, मैंने पूजा के लिए टिकट करवाए हैं क्योंकि छोटे दामाजी ने आज तक हमसे 1 रुपया नहीं मांगा। अपनी शादी का खर्चा भी उसने खुद उठाया है। उल्टा इसने तो मेरे दुपट्टे का कारोबार में मदद मेरी की है। इतना कुछ कहने के बाद अगर मैं उन्हें कराची घुमाने भेजता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी तरफ से कोई तफरीक हुई है, क्योंकि तुम इस बात से इनकार कर सकती हो कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने और दामाजी ने सिर्फ रुपया पैसा ही मांगना है। और नवीद पहले ही मेहनती जिम्मेदार जवान था, दफ्तर में मन लगाकर काम करता, लेकिन पैसों की चमक दमक में उसकी आंखें भी चंधिया गई हैं और तुम्हारी तरह गैर जरूरी खर्चे करने लगा है, जिसकी वजह से कारोबारी कर्ज में डूबता गया। ये जरूरी सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किलात से मैं उससे उभरा हुआ हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें नवीद की अपनी जायदाद में दखल करता हूँ, क्योंकि ऐसे निकम्मे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए अभी अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांध लो और निकल जाओ मेरे घर से। अपने वालिद की तरफ से अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद रुखसाना वहां 1 मिनट भी नहीं रुकी और अपने ससुराल पहुंच गई, जहां नवीद अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। रुखसाना ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें क्या हुआ है, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? नवीद बोला, तुम्हारे लिए जिंदगी देने के चक्कर में मैं तो कंगाल हो गया, ना घर का रहा ना घाट का। आज मेरे पास ना कोई काम है ना जमा पूंजी, और इधर जुसर साहब मुझे दफ्तर से निकाल दिया है। मेरे पास तो तनख्वाह भी नहीं है तो 2 वक्त की रोटी खा सकूं। रुखसाना बोली, अच्छा मेरी वजह से ये सब हुआ है? जब पैसे थे तो तुमने खुले हाथों से खर्च किया, यहाँ तक कि जुएबाजी में भी पैसे लगाए। तब तुम्हारे हाथ नहीं रुके थे, खेल में तुम्हें भी मजा आता था। तब तो तुमने कहा कि रुखसाना तुम्हारी वजह से आज मैं कितने मजे ले रहा हूँ। बस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि कमरे से निकलती आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मोहल्ले वाले भी उनकी बातों सुन रहे थे। तभी जैनब ने आकर कहा, बेटा थोड़ा धीरे बोलो, आसपास लोग खड़े होकर क्यों झांक झांक कर तुम्हारी तरफ बातों को मजे से ले रहे हैं। कल पूरे मोहल्ले में ताज़ा तरीन खबरें, इस तरह तुम्हारी बातों का मिर्च मिसाला लगाकर उड़ा दिया जाएगा। रुखसाना बोली, अम्मी जान आप तो बिल्कुल चुप हो जाइए, हम मियाँ बीवी के मामले में ना पड़े तो बेहतर। आइंदा मेरे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुखसाना और अपना सारा गुस्सा जैनब पर उतारा। जैनब चुपचाप बाहर आ गई। अब दाल रोटी का खर्चा चलाना भी नवीद और रुखसाना के लिए मुश्किल हो रहा था। नवीद रोज नई नौकरी ढूंढने जाता और मायूस होकर वापस लौट आता। उधर रुखसाना अपनी माँ को रोज फोन करके माफी मांगने की कोशिश करती, मगर माँ अपनी औलाद को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से रुखसाना और भी चिड़चिड़ी हो गई। एक दिन जैनब का सामान लेने बाहर निकली थी कि परी का फोन आ गया, अम्मी मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, आपका ख्वाब पूरा हो गया है। अम्मी यह सुनकर जैनब खुशी से फूली ना समाई और बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी। घर आकर जैनब ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और जब ये बात रुखसाना को पता चली तो वो जैनब के पास आकर बोली, वाह अम्मी जान, दीदी ने तो कमाल ही कर दिया, आप तो लाखों कमाएंगी। आपके मोहल्ले महकमे वाले तो 2 नंबर की कमाई करते हैं। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो हमारी भी दिन फिर से खिल जाएंगे। अम्मी जान हम दीदी का इस्तकबाल ऐसा सूखा नहीं कर सकती, तो आज तो मैं खुद को अपने हाथों से दीदी के पसंद का बेसन का हलवा और मटर की कचौरी बनाऊंगी। जैनब ने पहली बार बहू के मुंह से ऐसे प्यार भरे अल्फाज सुनकर आंसू बहा दिए और बोली, बहू तुम्हें अच्छा लगे? वो बोली, क्योंकि आज तक तुम वही करती आई हो, मैं तो अपनी बेटी का इंतज़ार कर ही रहूं, बस उसे देख लूं।
जिसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक ही शहर में रहते हुए अपने से दूर रखा था। बोलते हैं ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई। ज़ैनब ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजे की दस्तक तरफ पढ़ी। पीछे से रुखसाना और नवीद भी फूलों की माला लेकर इस्तकबाल कर खड़े थे। परी का बड़े मान और इज्जत के साथ इस्तकबाल हुआ। वक्त था जब घर में रोटी सब्जी भी सुकून से नसीब नहीं होती थी। वहाँ आज हलवा पूरी बनाया गया था। भाभी की बोल मीठी नहीं बोलती थी, आज उसकी ज़बानी पर शक्कर गिर रही थी। रुखसाना बोली, दीदी आपको तो कुछ ही नहीं खा रही, लीजिए ना बेसन का हलवा, आपको बहुत पसंद है ना, आपको तो पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। कहते हुए उसने 2 चम्मच परी की थाली में और रख दिए। परी ने कहा, भाभी आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत मज़ेदार बना है। नवीद बोला, और कुछ फरमाइश हो तो बता दें, अभी पूरी कर देगी। अपने भाई का बदला सलूक देखकर परी बोली, भैया फरमाइश तो बहुत मैंने आज तक की हैं, उन्हें नहीं, वरना भाई तो अपनी बहनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। और आपने तो हॉस्टल आकर भी मेरी खोज खबर नहीं ली। पूरे 2 साल हो गए हैं आपको राखी और टीका किए, हर बार का इंतज़ार, मगर आपने नहीं आए। नवीद बोला, अरे बहन पुरानी बातें छोड़, इस वक्त में मसरूफ़ था तो सब जानती हैं, धुंधा पानी बंद हो गया, अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, इतने पैसे नहीं होते तो समझ ले, लेकिन अब तो हमारे पास आ गई है तो देखना हमारे दिन भी मुकम्मल हो जाएंगे। अब जो तू कहेगी वो मैं तेरे कहने से पहले ही लाकर तेरे कदमों में रख दूंगा। भाई की बात सुनकर परी ने एक लंबी सांस ली और दिल ही दिल में सोचा, ऐ अल्लाह, इतना तो घर गोंदा भी रंग नहीं बदलता जितना आज मेरे भाई और भाभी ने बदला है। कल तक मैं इनके लिए कुछ भी नहीं थी और आज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई हूँ। ये बस इंतजार कर रहे हैं इस सोने के अंडे का जो हर महीने इनके हाथों में ला कर रखने वाली हूँ। ज़ैनब ने परी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तो कैसी है? परी बोली, अम्मी जी आज भी जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ और तेरे लिए हूँ, और अब ये तुम रोना भी बंद करो, तुम्हारी खुशियों भरे दिन आ गए हैं। चलो अब मैं तुम्हें बस यहाँ से ले जाने आई हूँ। परी ने ज़ैनब से कहा तो रुखसाना बोली, दीदी मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ का क्या मतलब है आपका? अच्छा आप हम सबको कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहती हैं? एक काम करते हैं, माल चलते हैं, फिर वहीं से आइसक्रीम खाएंगे। बस आप 10 मिनट रुकी, मैं अभी आती हूँ, बोली रुखसाना जल्दी से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद परी ने अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया, तभी रुखसाना भी जल्दी से आकर दरवाज़ा खोलने लगी। परी बोली, अरे अरे आप कहाँ अंदर घुस रही हैं? फिलहाल आपकी औकात नहीं है सरकारी गाड़ी में बैठने की। तब उसका भाई बोला, परी ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? क्या यही सलीका सिखाया था हमने तुझे? परी बोली, हाँ भैया आप ही के दिए हुए सलीके हैं और आप ही को लौटा रही हूँ। मैंने घर से जाते वक्त अपनी माँ से वादा किया था कि अपने साथ हुए हर बदसलूकी का बदला लूंगी। हालांकि माल हमेशा अच्छे काम नहीं करने लेकिन यकीन रखती है, मगर आज मैं बुरे के साथ बुरा करके ही रहूंगी। जैसा मैंने वादा किया था कि खुद इन्हिसार बनते ही माँ को अपने साथ ले जाऊंगी, बस वही पूरा करने आई थी। और आप जैसे लालची भाई भाभी को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहने आई थी, बोलकर परी ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और वहां से रवाना हो गई। रुखसाना और नवीद अपना सामना लेकर गाड़ी को जाते हुए देखते रह गए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।